اٹھو، تمہاری بہن گھر میں نہیں ہے۔ لڑکی کی ماں نے اپنے اس بڑے بیٹے کے کان میں رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی، جو کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ سے بیدار ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور غصے کی سرخیاں بیک وقت نظر آنے لگیں۔ وہ قبائلی لوگ تھے۔ قبائلی لوگ خود کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جانے کو مرگ و زیست کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر تیزی سے قمیض پہنی، جو اس کے سرہانے ہی دیوار سے لٹکی ہوئی تھی، اور پھر دوسرے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں اس کا چھوٹا بھائی سویا ہوا تھا۔ اٹھو، فاطمہ گھر میں نہیں ہے، اس نے چھوٹے بھائی کو بیدار کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت ہی غصیلا اور جذباتی لڑکا تھا۔ کہاں گئی یہ کمبخت؟ اس نے ایک موٹی گالی نکالتے ہوئے پوچھا، مگر اس کے سوال کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ سب تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے، وہ اپنی ماں پر چلانے لگا، جو پہلے سے ہی پریشان تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اس کی اولاد 3 کے ہندسے سے نیچے آنے والی ہے، پھر چاہے کسی بھی صورت۔ کچھ دیر بعد شہر کی سنسان گلیوں میں ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح افراد گشت کر رہے تھے، مگر وہ جنہیں ڈھونڈ رہے تھے وہ اب تک ان سے سینکڑوں کلومیٹر دور کسی محفوظ مقام کی طرف محو سفر تھے، مگر وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اب زمین ان کے لیے ایک مخصوص دائرے میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ اب ہر آشنا و ناآشنا ان کی نظر میں مخبر بن چکا ہے۔ قبائلی سسٹم میں پلنے بڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں کہ گھر سے بھاگنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ قبائلی دائرے میں رہنے والوں نے بھاگ کر شادی کی ہو اور وہ مارے نہ گئے ہوں۔ اس مسئلے کو لے کر یہ لوگ اتنی سنجیدگی دکھاتے ہیں کہ شہر، ضلع، صوبے، یہاں تک کہ پڑوسی ملکوں تک چھان بین کر کے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مل جانے پر دونوں ہی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک کو مارا جائے تو مرنے والے کے لواحقین بچنے والے کو مار دیتے ہیں، اس لیے لڑکا لڑکی دونوں ہی کا مرنا ضروری ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل سوار اب تھک ہار کر دوبارہ اپنے گھر کے گیٹ پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہرے صدمے سے نڈھال تھے۔ بڑے بھائی نے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا، اور کچھ دیر بعد ان کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا ٹرک کھڑا تھا، جس میں گھر کا تمام سامان لوڈ کیا گیا۔ پھر یہ 3 افراد پر مشتمل کنبہ رات کے اندھیرے میں اس علاقے سے اچانک ہجرت کر گیا جہاں رہتے ہوئے انہیں 10 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ اب ان کا پڑاؤ کسی دوسرے شہر اس مکان میں تھا جو ان کا ذاتی مکان تھا۔ بڑے بھائی نے فون کر کے اپنے بڑے چچا کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ وقوع ہو گیا ہے۔ ان کے ٹوٹل 3 چچا تھے اور والد وفات پا چکا تھا۔ لڑکی کی منگنی 2 سال پہلے اپنے ماموں زاد سے ہوئی تھی۔ اب شادی کا سوچا جا رہا تھا کہ وہ فرار ہو گئی۔ اگلے دن تینوں چچا اپنے بچوں سمیت ان کے گھر آ دھمکے تھے، مگر ان سے پہلے لڑکی کا منگیتر اپنے باپ سمیت پہنچ چکا تھا۔ ایک بری خبر یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی 2 دنوں سے لاپتہ ہے، منجلے چچا نے افسردگی سے کہا۔ لڑکی کے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں سرخی اور چمک ایک ساتھ نظر آنے لگی۔ وہ اب تک سویا بھی نہیں تھا، مگر اب اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ دونوں کو جلد ہی ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں عہد کرتا ہوں، جب تک دونوں اپنے انجام کو نہیں پہنچتے میں کسی شادی کا نہیں سوچنے والا ہوں۔ لڑکی کے منگیتر نے اپنے عہد کا اظہار کیا۔ میں بھی عہد کرتا ہوں، تب تک شادی مجھ پر حرام ہے جب تک دونوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں ماروں گا۔ لڑکی کے چھوٹے بھائی نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ دونوں جہاں جس حالت میں ملیں مار دینا، ان کا ایک حرف تک مت سننا، بڑے چچا نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ باقی افراد نے صرف پریشانی کا اظہار کیا اور کوئی رائے نہیں دی۔ ہر وہ کونا چھان مارا گیا جہاں وہ ہو سکتے تھے،
मगर उनका कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। अब उनके महल्लेदार भी इस मामले पर बातें करने लगे थे। सालों पर साल बीतते चले गए, मगर उन्होंने ढूंढने की कोशिश तर्क नहीं की। लड़की का मंगेतर एक मिनी ट्रक चलाता था, जिसे हरफे आम में मजदा या मजडा भी कहते हैं। वो उसकी जाती गाड़ी भी थी और जरिए मौश भी। उसे हफ्तों हफ्तों बाद दूसरे सूबों का इक्का दुक्का लोड भी मिल जाया करता था। उसकी गाड़ी में अक्सर 2 अफराद ही होते थे, जिनमें से एक क्लीनर लड़का था जो उसके पड़ोस ही में रहता था। वो इंतहाई समझदार और चालाक किस्म का मगर काबिले भरोसा आदमी था। एक दिन वो किसी दूसरे सूबे के एक जिला में लोड उतारकर वापस हो रहे थे, तो वहां रोड के किनारे बने एक आम से होटल की टेबल पर बैठे हुए एक शख्स पर उसकी नजर पड़ी। आज उस वकूए को 11 साल का तवील अरसा हो चला था, मगर वो उसका चेहरा कैसे भूल सकता था। वैसे भी उसके इस शख्स के साथ कभी बनती भी नहीं थी। उसका खून खौलने लगा। उसने कुछ ही फासले पर सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी और डैशबोर्ड में बनी दराज को खोलकर पिस्टल निकाल लिया। उस्ताद, कहां जा रहे हो? लड़के ने हैरत और परेशानी में उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सवाल जवाब का टाइम नहीं है, तो गाड़ी स्टार्ट रख, स्टीयरिंग पर तैयार बैठे रहना। मैं ज्यादा देर करूं तो गाड़ी लेकर चले जाना। उसने लड़के को हिदायत की और खुद पिस्टल नेफे में अटकाकर गाड़ी से उतर गया। अभी वो गाड़ी से उतरा ही था कि इत्तेफाकन उसके मोबाइल पर कॉल की ट्यून बजने लगी। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो वहां उसकी मंगेतर के छोटे भाई का नाम और नंबर चमक रहे थे। हेलो, उसने कॉल अटेंड करते हुए कहा। तुम्हारी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, कोशिश करना जल्दी आ जाना। दूसरी तरफ से कहा गया। वो मिल गया है और मैं उसे मारने लगा हूं। उसने कही गई बात को पसे पुष्ट डालते हुए अपनी बात कही। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? दूसरी तरफ से कुछ तवक्कुफ के बाद कहा गया। तुम उसकी जासूसी करवाओ। वो कहां रहता है, क्या करता है, सारी मालूमात जमा करो। उसके बाद तुम खुद को बरीउल जिम्मा भी समझो तो मैं हैंडल कर लूंगा। उस अकेले को मारना गैर जिम्मेदाराना अमल है। बेहतर है तुम उसे नजरों से ओझल होने मत दो, लड़की के भाई ने उसे समझाते हुए कहा। उसे भी लगा कि वो जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। हाँ ठीक है, मैं उसका इंतजाम करता हूं, और अम्मी से कह देना मैं जल्द ही आ जाऊंगा। वो कॉल काट कर फौरन दोबारा गाड़ी की तरफ लपका। उसके इशारे पर लड़का गाड़ी का इंजन बंद करके नीचे उतर आया। तुम्हें एक काम करना है। वो सामने काले कपड़ों वाला आदमी देख रहे हो? उस्ताद ने इशारा किया। वही ना जो अकेला बैठा हुआ है? लड़के ने मज़कूरा शख्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ वही, ठीक समझा, लड़के के उस्ताद ने जवाब दिया और 40,000 रुपए उसे थमाते हुए समझाया कि तुमने इस आदमी का तब तक पीछा करना है जब तक तुम इसका घर नहीं देख लेते। मगर क्यों? उसने अपने उस्ताद की तरफ देखते हुए हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुर में पूछा। इस काम के इख्तिताम पर तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, सब पता चल जाएगा। फिलहाल इस बंदे पर कड़ी नजर रखो, जितने दिन लगे यहीं रहना। मजीद पैसों की जरूरत पड़े तो फोन कर देना। उस्ताद ने उसे दोबारा समझाया। नहीं, इतने पैसे काफी हैं, उसने जवाब दिया। और फिर कुछ देर बाद वो वहां अकेला खड़ा दूर से उस आदमी पर नजर रखे हुए था जिसे वो जानता तक नहीं था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता होटल की तरफ बढ़ रहा था। उसने ऐन उस नामालूम शख्स के सामने वाले टेबल का इंतखाब किया। करीब से देखने पर उसे लगा ये बहुत ही मासूम और बेजरर सा शख्स है। अब उसकी चाय आ चुकी थी। वहां करीब करीब उन दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। चाय पियोगे दोस्त? लड़के ने उसे चाय की दावत दी। नहीं शुक्रिया, मैं पी चुका हूं।
उसने मुस्कुरा कर चाय पीने से इनकार कर दिया। लड़का दिल ही दिल में सोच रहा था, इतने नफीस और शाइस्ता मिजाज आदमी की जान का कोई क्यों दुश्मन हो सकता है। कुछ देर बाद वो उठकर जाने लगा तो लड़के ने जल्दी जल्दी चाय के पैसे अदा किए और मुस्तनैदी से उस पर निगाहें गाड़ लीं। उसका रुख सड़क की दूसरी तरफ मौजूद एक गली की तरफ था। लड़के ने दूर दूर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इस गली के इख्तिताम से पहले ही वो एक दूसरी और निस्बतन कुशादा गली में मुड़ गया। इस गली के इख्तिताम पर एक घर का बड़ा सा गेट था, यानी ये बंद गली थी। लड़के ने वहीं रुकना मुनासिब समझा, क्योंकि वो यहीं से देख सकता था कि वो किस घर में दाखिल होता है। लड़के ने उसे एक घर में दाखिल होते हुए देख लिया था। गेट के बंद होने पर उसने करीब जाकर देखने का फैसला किया ताकि बाद में कोई गलत फहमी ना हो। उसने घर की 2-4 वाज़ेह निशानियां ज़हन नशीं कर ली थी। ये घर बाहर से तकरीबन 2 कमरों पर मुश्तमिल ही लग रहा था। घर के मकीन इस बात से बेखबर थे कि मौत ने बिलाखिर उनका ठिकाना ढूंढ लिया है। ये सर्दियों के शुरुआती दिन थे जिनमें हल्की फुल्की सर्दी महसूस की जा सकती थी। कुछ दिन बाद रात की तारीकी में 2 नकाबपोश उनके गेट के बाहर खड़े थे, जिनके पास अपने अपने पिस्टल और खंजर थे। उनमें से एक ने आहिस्तगी से गेट की सपोर्ट के लिए बनाए गए पिलर पर चढ़कर अंदर की जानिब से गेट खोल दिया और दोनों नकाबपोश सहन में खड़े थे। उनमें से एक ने कमरे की खिड़की की ओट में खड़े होकर अंदर झांका तो वहां एक मर्द और एक खातून गहरी नींद सोए हुए थे। कमरे में 0 बल्ब की मध्यम सी रोशनी थी। उस वक्त तकरीबन रात के 2:30 बज रहे थे। वो दोनों फैसला कर चुके थे कि जितनी खामोशी से वो काम को निपटा सकते हैं उतनी ही खामोशी उन पर लाजिम है, वरना अहले महल्ला जमा होकर उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। लड़की के भाई ने तेज धार छुरा निकाला। ये छुरा उसने आखिरी हद तक तेज कर रखा था। अब लड़की का भाई सोए हुए मर्द के सरहाने बैठा हुआ था, जबकि लड़की का मंगेतर उस मर्द के पैरों की तरफ से बैठ गया ताकि उसके तड़पने पर वो उसे काबू रख सके। बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती, मरने वाला उस जाविये पर लेटा हुआ था जिससे उसकी शहरत काटना निहायत ही आसान था। सरहाने बैठे कातिल ने आन की आन में पूरी फुर्ती से उसकी गर्दन पर छुरा फेर दिया, जिससे उसका गला गहराई में कटता चला गया और खून का एक फवारा सा बरामद होकर गायब हो गया। सरहाने बैठे कातिल ने मजबूती से उसके बाजू पकड़ लिए ताकि उसकी फड़फड़ाहट से पास ही सोई हुई उसकी बहन न जाग जाए, मगर मकतूल के कटे हुए गले से बरामद होने वाली आवाजों ने उनकी परेशानी में इजाफा कर दिया था, क्योंकि इतनी आवाजें पास सोए शख्स को भी बेदार करने के लिए काफी होती हैं। उसने फौरन मकतूल के हाथ छोड़कर बहन की गर्दन का रुख किया। पैरों की तरफ से बैठे हुए शख्स ने भी अपनी जगह छोड़ दी थी। कुछ ही देर बाद उसकी गिरफ्त में मर्दाना पैरों की बजाय जनाना पैर थे, क्योंकि अब तक दूसरी गर्दन भी कट चुकी थी। वो बला के वहशी और दरिंदा सिफत लोग थे। कम अज कम उस वक्त उनमें जरा बराबर भी इंसानियत नजर नहीं आ रही थी। उन दोनों लाशों का खून एक साथ मिलकर बहने लगा था। कातलों के कपड़े और जूते भी खून आलूद हो चुके थे। उन्होंने सहन में लगे बेसन से हाथ मुंह और आलाए कत्ल साफ किया और फिर गेट खोलकर दोबारा बाहर निकल गए। उन्हें खुद के पकड़े जाने की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उन्हें खून माफ करने वालों ने ही खून करने भेजा था। वो आहिस्ता आहिस्ता गली से मेन रोड की तरफ निकल रहे थे। लड़की का भाई ना जाने किन सोचों में गुम था। वो जहन पर जोर दे देकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। तुम चलते रहना, रुकना मत और ना ही मेरा इंतजार करना, लड़की के भाई ने उसके मंगेतर से कहा और खुद यकलख्त दोबारा मकतूलैन के घर की तरफ दौड़ लगा दी। तफ्तीशी अफसर सहन में मौजूद
उन निशानात का बगौर मुआयना कर रहा था जो जूतों पर खून लगने से बने थे। ये ऐसे जूतों के निशानात थे जिनके तलवों में गाड़ी के टायर का डिजाइन इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिसर को ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि कातिल कम से कम यहां का मकामी नहीं है। इन्हीं जूतों के निशानात मर्द की लाश के चेहरे पर भी सब थे, जिससे कातिल की मकतूल से शदीद नफरत का पहलू निकलता था, जबकि कातिल ने जाते हुए खातून की लाश पर एक चादर डाल दी थी। दिल दहला देने वाला मंजर घर के दूसरे कमरे में था, जहां 4 मासूम बच्चों की गला कटी लाशें एक साथ पड़ी हुई थी। ये वाकया किसी पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है या फिर गैरत के नाम पर कत्ल का। ऑफिसर ने एक एहलकार से कहा, जी सर, यही लगता है। उसने असबात में जवाब दिया। दूसरी तरफ दोनों कातिल इस कारनामे से अपने बड़ों को आगाह कर चुके थे, जहां से उन्हें शाबाशी ही मिलनी थी। दिन चढ़े दोनों ने नहा धोकर मुतलका थाने का रुख किया और वहां जाकर इकबाल जुर्म कर लिया। उन्होंने गैरत के नाम पर कत्ल करने का एतराफ किया। वो चंद ही हफ्तों में अपने अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि मकतूलैन के लवाहिकीन ने उन्हें खून माफ कर दिया था। सुलहनामे पर दस्तखत और कुछ पुलिस वालों को खिला पिलाकर वो वक्त से पहले ही कानूनी कार्रवाइयों से जान छुड़ा चुके थे। मकतूलैन की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई थीं, जिनके जनाजे का कोई ऐलान नहीं करवाया गया। अहले मोहल्ला के साथ मिलकर 6 लाशें खामोशी से दफन कर दी गई। लोग बच्चों के कत्ल पर अंदर ही अंदर से दुखी थे, मगर वो ऐसे मामले में लबकुशाई से बाज ही नजर आए। तुमने उन मासूमों का खून क्यों बहाया? लड़की की मां ने अपने बेटे से पूछा। अम्मा, वो 4 बच्चे नहीं थे, बल्कि 4 चलती फिरती गालियां थीं जो हमें सारी जिंदगी पड़ती रहती, इसलिए उनका मरना जरूरी हो गया था। उसने इंतहाई सफाकियत और लापरवाही से जवाब दिया। सबसे बुरा हाल मकतूल की मां का था, जिसे ये तो जरूर पता था कि उसका बेटा उन जालिमों के हाथ लगा तो बच नहीं सकेगा, मगर उसे अपने 3 पोतों और एक पोती के नाहक कत्ल का सदमा अंदर ही अंदर से बेकरार किए हुए था। उसे इस बात का भी शदीद दुख और गुस्सा था कि उसके जिगर के टुकड़े के चेहरे पर ऐसे नीच शख्स ने लातें मारी थी जो कभी उसके पैर बराबर भी नहीं हो सकता था। मकतूल की वालिदा को उसके नाम और शक्ल से भी घिन आने लगी थी। उसने अपने शौहर से कह रखा था कि मेरी जिंदगी में तो क्या, मेरे मरने के बाद भी इस जलील आदमी को मेरे घर में दाखिल होने मत देना। कई महीने गुजर गए, मगर उस खातून के इस्तराब व बेचैनी में कोई फर्क नहीं आया। एक दिन वो अपने उस इकलौते भाई के घर गई, जो यहां से चंद किलोमीटर ही दूर रहता था। वो अपने भाई को दिल का हाल सुनाकर काफी देर रोती रही। उसकी बेबस बूढ़ी आंखों में अपने कत्लशुदा कुनबे की लाशें आंसू बनकर तैर रही थी। मैं खुदा तो नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम का मदावा करने का जरूर सोच रहा हूं। खातून के उधेड़ उम्र भाई ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। और फिर चंद हफ्तों बाद मेन शाहराह के सुनसान हिस्से में उसके कुनबे के कातिल को रात गए किसी तेज रफ्तार हैवी गाड़ी ने कुचल कर कचूमर बना दिया था, जिससे उसकी लाश नाकाबिले शनाख्त होकर रह गई थी। मगर जेब से मिलने वाले सामान और तबाहशुदा मोटरसाइकिल ने यह मसला जल्द ही हल कर दिया था। अब शायद मैं कभी सुकून से जी ना सकूं, मगर तुमने मेरे सुकून से मरने का इंतजाम कर दिया है। उसने फोन पर अपने भाई का शुक्रिया अदा किया।